شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے صاف ستھرا سندھ خوبصورت پاکستان کے ویژن کے تحت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے اسکولوں میں آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد نئی نسل میں صفائی اور ماحولیاتی تحفظ سانگھڑ میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ تقریباً صفر، سردی کی شدت میں اضافہ، شہری گھروں میں محصول دکانوں کے سامنے آگ جلا کر ہاتھ گرم کرتے اور جسم میں حرارت محسوس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سانگھڑ سے ہمارے نمائندے ظفر علی لودھی سے۔ جی ظفر علی، بتائیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں سانگھڑ کے شہراؤں پر، جہاں پر شہروں کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ سموگ نے اس قدر شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، زندگی مخلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اور دوسری طرف محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ گزشتہ کئی دنوں تک یہ دھند کا راج رہے گا، اور محکمہ ہیلتھ کی جانب سے بھی لوگوں کو یہی کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ اس کے اندر شدید کھانسی، بخار اور کئی ایسی امراض جو ہیں وہ جنم لیں گی۔ اور بات کی جائے شہر میں جو لوگ جو ہے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ زندگی دھند کے باعث جو ہے ہم سفر نہیں کر سکتے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے یہاں پر شہریوں کو ہائی الرٹ دیا گیا ہے کہ غیر جو ضروری سفر سے گریز کریں، تاکہ دھند کے باعث کوئی بھی جو ہے حادثہ نمو ہو سکتا ہے۔ اور مزید جو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے موٹر سائیکل سوار اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو اپنے مقصد تک استعمال کریں اور غیر معمولی سفر سے گریز کریں، تاکہ ایسے موفوق کے ذریعے جو حادثات ہوتے ہیں ان سے بچا جائے۔ جی خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے سیالکوٹ میں شدید سردی اور دھند کے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سرد موسم کے باعث شہریوں نے سردی کی شدت کم کرنے کے لیے مختلف سوپ پوائنٹس اور گرم اشیاء خوردنوش کا رخ کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک علی عمران سے۔ آج سیالکوٹ میں دھند کا راج رہا سارا دن، اور شہری جو ہے لطف اندوز ہونے کے لیے، سردی کو انجوائے کرنے کے لیے سوپ پوائنٹ کا رخ کر چکے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو کہ سوپ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کیا کھا پی رہے ہیں آج سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے؟ ہم سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ سوپ پوائنٹ کے انجوائے کر رہے ہیں، اور ہر سال یہاں پہ آ کے ہم سوپ کے انجوائے کرتے ہیں۔ اپنے ننھے منھے بچے کی بات سنی کہ اس کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال کی طرح یہاں پر آ کے سوپ پیتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سردی کی شدت کو کم کرتا ہے، اسے بھرپور ہے، اور لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے لیے پیک کروا کر بھی گھروں میں لے کر جا رہے ہیں۔ جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے سرد موسم اور ٹھنڈی راتوں میں قصور کے شہری ذائقہ دار دیسی گھی سے تیار کردہ گاجر کا حلوہ شوق سے کھاتے ہیں۔ قصوری گاجر حلوے پر مزید دیکھتے ہیں نعیم اقبال بھلر کی یہ رپورٹ۔ موسم سرما کی ٹھنڈک اور دھند والی راتیں ہوں اور ساتھ گرما گرم دیسی گھی سے تیار پستہ بادام اور کاجو والا گاجر حلوہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ جسمانی توانائی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سرد راتوں میں گاجر حلوے کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے، کوئی دکانوں پر کھا رہا ہے تو کوئی گھر لے کر جا رہا ہے۔ گاجر حلوے کے ساتھ سبز چائے کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ یہ گاجر حلوہ جو ہے خالص دیسی گھی سے، پستہ بادام اور کھوئے سے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سردیوں میں ایک سوغات ہے، کھانے سے سردی کی شدت بھی کم ہوتی ہے اور انرجی بھی ملتی ہے۔ سبز چائے جو کہ بہت ہی عالی شان دھماکے دار ہے، یہ پینے کے بعد روح کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ محبت کے ساتھ بنایا گیا دیسی گھی والا گاجر حلوہ میں پستہ بادام کاجو شامل کر کے تیار کیا جاتا ہے، جو سردیوں میں صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ گاجر حلوہ قصور کا اسپیشل گاجر حلوہ ہے، پستہ بادام کاجو حالت دیسی گھی سے بنا ہوا ہے۔ یہ قصور کی سوغات ہے، یہاں پہ تقریباً سارے مقامی لوگ اس کو کھانے آتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں، باہر کے شہروں سے بھی آتے ہیں، لاہور سے بھی آتے ہیں۔ یہ قصور کی سوغات ہے۔ سردیوں کی سردی کا لطف اٹھائیں اور دیسی گھی کاجو بادام اور پستے والا گاجر حلوہ کھائیں۔ سرد موسم، دیسی ذائقہ اور گاجر کا حلوہ، دیسی گھی پستہ بادام سے سجی یہ مٹھاس ہر آنے جانے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، سردی کی شدت کو کم کرتا ہے اور جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم اقبال بھلر، میٹرو 1 نیوز قصور۔
खबर शामिल करेंगे घोटकी से। घोटकी के नवाही इलाके खानपुर महर में मुसल्लह अफराद का हमला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद इस हवाले से आपको बताएंगे घोटकी के नवाही इलाके खानपुर महर में लंडी ठोड़ी गांव शरीफ पताफी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में दो पताफी, असगर पताफी और हुजूर बख्श पताफी जाँ बहक हो गए, जबकि हबीबुल्ला पताफी, जुबैर पताफी समेत 3 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पताफी बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर तसादम हुआ, जिसके बायस शहरियों ने इत्तला दी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज किया। न सिर्फ जख्मियों बल्कि लाशों को भी तहसील हस्पताल खानपुर महर मुंतकिल किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सुथरा प्रोग्राम की बेवा खातून मुलाजमा पर दौरान ड्यूटी बदतरीन तशद्दुद का वाकया पेश आया, जिसके बायस मुलजमान ने खातून मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े फाड़े, बालों से पकड़कर घसीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर खानेवाल से, जहां सुथरा प्रोग्राम की बेवा खातून मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद का वाकया पेश आया। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम इकबाल अपने साथियों समेत दौरान ड्यूटी वर्कर्स को गलीज गालियां और हिरासा करता रहा, जबकि खातून मुलाजमा को बालों से पकड़कर घसीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। तशद्दुद का यह वाकया खानेवाल के नवाही इलाके 159R में पेश आया। मखदूमपुर पुलिस ने 1 नामजद और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देंगे आपको कि कश्मोर में डकैती की वारदात हुई, जिसमें गांव दरिया खोसो के इलाके में नामालूम मुसल्लह डाकू ने शहरियों पर हमला कर दिया। मज़ाहमत करने पर शौकत खोसो शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि डाकू 15 से ज़ायद मवेशी लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस की नाकामी और अमन व अमान की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत। कश्मोर के गाँव दरिया खोसो में नामालूम मुसल्लह डाकू ने डकैती की वारदात की। मज़ाहमत करने पर शहरी शौकत खोसो शदीद जख्मी हो गए और इन्हें तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुसल्लह डाकू 15 से ज़ायद मवेशी लेकर फरार हो गए, जबकि इलाकाई पुलिस अब तक अमन व अमान कायम करने में नाकाम रही है और डाकू दोबारा सरगर्म हो चुके हैं। जबकि शहरियों का मुतालबा है कि पुलिस फौरी और मौसर इक़दामात करे ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। खबर शामिल करेंगे कंडियारों से। कंडियारों में स्टेशन रोड पर वाक़ निजी मेडिकल सेंटर से लाखों रुपए की चोरी हुई है। मशहूर सर्जन डॉक्टर अजीज सहतो और डॉक्टर बदर के मेडिकल स्टोर में नामालूम चोर दाखिल होकर नकद रकम और कीमती अद्वियात लेकर फरार हो गए। कंडियारों में जराइम का सिलसिला जारी है। स्टेशन रोड के करीब वाक़ निजी मेडिकल सेंटर में नामालूम चोर दीवार फलांग कर दाखिल हुए, ताले तोड़कर स्टोर से तकरीबन 3 लाख रुपए नकद और महंगी अद्वियात चुराकर फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है और शहरियों में तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश का आगाज किया, जबकि मुलजिमान की तलाश जारी है। और खबर दें आपको सियालकोट से। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई हुई। जाली सफरी दस्तावेजात और विजिट वीज़े की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 4 मुसाफिर ऑफ लोड कर दिए, जबकि इब्तिदाई तफ्तीश में बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई करते हुए जाली सफरी दस्तावेजात और विजिट वीज़े की आड़ में यूरोप जाने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान 4 मुसाफिर मोहम्मद असद, नदीम, सुफियान अरशद और कैसर फारूक को ऑफलोड कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिरों का ताल्लुक सियालकोट और गुजरावाला से है, जबकि इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुसाफिर कराची के एक एजेंट के साथ राब्ते में थे। मुसाफिरों ने मजमूई तौर पर 40 लाख रुपए में बैरून मुल्क जाने के मामला तय किए थे और इन्हें गैर कानूनी तौर पर समुद्री रास्ते से यूरोप पहुंचाया जाना था। FIA के मुताबिक मुसाफिरों को मजीद तफ्तीश और एजेंट की निशानदही के लिए कंपोस्ट सर्कल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया है।
اور اب خبر شامل کریں گے کہرور پکا سے۔ کہرور پکا میں قدیمی قبرستان میں آوارہ کتوں کے ڈیرے ہیں۔ قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ کتے قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ شہری اور فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے افراد بھی محفوظ نہیں۔ مکین حکومت پنجاب سے قبرستان کی 4 دیواری بنوانے اور آوارہ کتوں کو تلف کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہرور پکا کا قدیمی قبرستان میں آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے مسئلے شہریوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ قبرستان کی غیر محفوظ صورتحال کی وجہ سے آوارہ کتے قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے افراد بھی خطرے سے خالی نہیں۔ قریبی مکینوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کی 4 دیواری بنائی جائے اور آوارہ کتوں کو تلف کیا جائے تاکہ شہری اور زائرین محفوظ طور پر فاتحہ خوانی کر سکیں۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے۔ آپ کو بتائیں گے اوکاڑا میں 14L کا مین روڈ طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث سڑک کی خستہ حالی روزانہ حادثات معمول بن چکے ہیں۔ تاہم ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر اقدام سامنے نہیں آ سکا۔ اسی صورتحال پر مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حافظ امتیاز شاہد سے۔ جی امتیاز شاہد، آگاہ کیجیے گا، شہری کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، میں موجود ہوں اس وقت اوکاڑا کے مین 14 روڈ کے اوپر، جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آئے روز یہاں پہ مختلف حادثات پیش آتے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں جو اس کے بارے میں بات کریں۔ دیکھیں، یہ روڈ بڑا عرصہ ہو گیا ٹوٹے ہوئے اور اب تو اس کی صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ یہاں پہ رونما ہوتا ہے۔ اور اگر بات کریں یہاں مہنگی سوسائٹیز کے حوالے سے، تو اس کے روڈ کے دونوں طرف جو ہیں اوکاڑا کی مہنگی ترین سوسائٹیاں ہیں، اس کے باوجود یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے اور بار بار ہم اپنے عوامی نمائندوں سے بھی گزارش کر چکے ہیں، ضلع انتظامیہ سے بھی ہم نے اس بابت درخواست کی ہے، اور آج آپ کے توسط سے بھی ہم ضلع انتظامیہ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس روڈ کو فی الفور تعمیر کیا جائے تاکہ یہ پریشانی جو ہے مستقل طور پر ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کی طرح باقی علاقہ مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ساہیوال سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے پولیس لائن ساہیوال میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشرف سیال کی رپورٹ میں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد عثمان ٹیپو کی ہدایت پر پولیس لائن ساہیوال میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال فاروق انور نے پریڈ کا معائنہ کیا اور چاقو چوبند دستوں سے سلامی لی۔ جنرل پریڈ میں ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈی پولیس کے دستوں نے شرکت کی۔ مارچ پاسٹ کے دوران تمام دستوں نے بہترین نظم و ضبط اور مقررہ فارمیٹ کے مطابق اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے پریڈ کے دوران افسران اور اہلکاروں کو تیاری، فزیکل فٹنس اور ڈسپلن کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی کہ فورس کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ تربیتی سرگرمیوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ پریڈ کے اختتام پر ایس پی انویسٹیگیشن نے پولیس موبائلز اور موٹر سائیکلز کا معائنہ کیا اور ان کی بہترین دیکھ بھال اور آپریشنل تیاری سے متعلق ضروری ہدایات جاری کی۔ کیمرہ مین ذیشان اشرف کے ساتھ محمد اشرف سیال، میٹرو ون نیوز ساہیوال۔ خبر شامل کریں گے گجرات سے۔ آپ کو بتائیں گے گجرات میں جگہ جگہ تجاوزات ختم کر دی گئی ہیں اور پارکنگ اسٹینڈ کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے رانا محمد نذیر سے۔ جی رانا نذیر، آگاہ کیجیے گا۔ اس چوک کی کہ میں جس چوک میں کھڑا ہوں یہاں پہ 24 گھنٹے تو میں نہیں لیکن 18 گھنٹے روڈ بلاک ضرور رہتا ہے۔ کبھی یہ سکول والا روڈ، کبھی یہ کچہری والا روڈ، کبھی یہ فوارہ چوک، کبھی یہ مین بازار، جگہ جگہ نو پارکنگ، بڑے بڑے پارکنگ سٹینڈ موٹر سائیکلوں کے، بڑے بڑے تجاوزات اور ٹریفک پولیس کی موجودگی میں نو پارکنگ کی جو ہے خلاف ورزی، یو ٹرن کی خلاف ورزی، تمام جو بھی غیر قانونی جو ہے ٹریفک کا نظام ہے تجاوزات کے حوالے سے بات کریں، یہ چوک اس کا مرکز ہے۔ لیکن آج یہاں پہ یہ صاف ستھرا ماحول کیوں ہے کہ یہاں پہ کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نہیں آ رہی،
ना ही वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं और ना ही कोई मिनिस्टर। यहाँ पे सिर्फ कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरात कारपोरेशन में क्रिसमस का केक काटने आ रहे हैं और ये हालात हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब गुजरात साहब कभी उस्मानपुरा मोहल्ला का चक्कर लगाएं, खालदाबाद का चक्कर लगाएं, रहमताबाद का चक्कर लगाएं, आपको पता चले कि इबादत गाहों के आगे, स्कूलों के आगे, गली मोहल्लों में कितना गंदा पानी खड़ा है आज भी। और बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, आज तो चलो छुट्टियां हैं स्कूलों की, लेकिन आज भी वहाँ पे राहगीर गुजरने वाले उतने ही परेशान हैं जितनी आपके लिए आज ये सफाई की हुई है। और आम आदमियों का भी ख्याल रखें, आम शहरियों का भी ख्याल रखें, उनका भी इतना ही हक है साफ सुथरा रहने का। जी खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से। बहावलपुर में पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी धरना। फरीद गेट पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ज़िला अमीर नसरुल्लाह खान नासिर की क़यादत में अपने मुतालबात पेश किए। मजीद इस हवाले से बताएंगे भावलपुर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाजी धरना फरीद गेट पर मुनक़िद हुआ। धरने की क़यादत ज़िला अमीर नसरुल्लाह खान नासिर ने की, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिताब के दौरान नसरुल्लाह खान ने कहा कि पंजाब बल्दियाती एक्ट एक काला कानून है जो आइन के आर्टिकल 140 से मुतसादिम है। इन्होंने मुतालबा किया है कि बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाया जाए, इंतखाबात जमाती बुनियादों पर हों और यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त किया जाए। मुकर्रीन ने पैराफोर्स और ट्रैफिक पुलिस के भारी जुर्मानों पर तनकीद करते हुए आवाम को रिलीफ देने का भी मुतालबा किया। इन्होंने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर कसूर के शहरियों की बड़ी खुशखबरी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की रिपोर्ट। जी वासा तैयब फरीद ने कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर कसूर में साफ पानी और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए खतीर फंड्स फराहम किए गए हैं। इनका कहना था कि 31 दिसंबर से म्यूनसिपल कमेटी कसूर की हदूद में वासा बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर देगा, जबकि तमाम इलाकों में पानी और सीवरेज के निज़ाम को डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत लाया जाएगा ताकि बिलों की शफाफ वसूली को यकीनी बनाया जा सके। हमारे पास है सीवर सिस्टम, ऑल ड्रेन्स, ठीक है, और ट्रंक सीवर्स, इसी तरह से एक्सट्रैक्शन का जितना सोर्स है एसेट है वो हमारे पास होएगा, जो भी है इसका, ठीक है। और मेन वाटर बॉडी तक डिस्पोज वाटर को, वेस्ट वाटर को लेके जाना वो हमारी जिम्मेदारी है। विद इन द सिटी जो ओपन ड्रेन है, जब ये एसेट हमारे पास आएगा, ये जिस शक्ल में भी होगा हम इसकी रीअसेस करेंगे। इसको हम 3 कंपोनेंट्स में हम इसको देखते हैं हमेशा, क्योंकि सारा कुछ तो डे 1 में ना उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ना इतना रिसोर्सेज होते हैं, दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं होते। वी आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे द मोस्ट क्रिटिकल, वो आपकी गली हो सकती है। डीजी वासा का कहना था कि वासा की जानिब से तमाम मंसूबों की कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि शहरियों को बर वक्त और मयारी सहूलियात फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल में हुकूमत पंजाब के स्लोगन पढ़ा लिखा पंजाब के तहत नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले होनहार तलबा और तालिबात के एजाज़ में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। खानेवाल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ और प्रिंसिपल खलील रहमान ने तलबा व तालबात में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए राना मोहम्मद सलीम ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से महकमा तालीम में तलबा व तालबात के लिए खसूसी वज़ाइफ और लैपटॉप की तकसीम काबिल तहसीन है, जिससे पंजाब भर में लाखों तलबा व तालिबात मुस्तफिद हो रहे हैं। खानेवाल के बच्चे और बच्चियाँ आज उनको वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पढ़ा लिखा पंजाब प्रोग्राम के तहत उन बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं जिनके वालिदैन इन बच्चों को लैपटॉप लेके उनके पास इतनी आमदन नहीं थी कि वो इनको लैपटॉप दे। मेरे कायद ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खानेवाल में भी
बच्चियों और बच्चों को ये लैपटॉप दिए। लैपटॉप मिलने पर तलबा व तालबात ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम लैपटॉप स्कीम पे अप्लाई करें और हमें ये लैपटॉप मिले हैं। मैं मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने हमें लैपटॉप दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी तालीम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हुई है। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि हमारे आज के ये ममार कल को अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे और मुल्क पाकिस्तान की मैशियत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर सियासी समाजी रहनुमा समेत अस्ताज़ा और तलबा व तालबात ने भरपूर शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा मुमताज हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। वेलकम बैक। अब खबर देंगे आपको सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में एक और कामयाबी हुई है। गैंग के कारिंदे छुल्लू बकरानी हलाक ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठिकाने मसमार और नजर आतिश कर दिए गए हैं। मजीद आपको बताएंगे घोटकी में सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अंधड़ गैंग के कारिंदे छुल्लू बकरानी हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू के सर की कीमत पंजाब पुलिस की तरफ से 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं को कई ठिकाने मसमार किए गए हैं और नजर आतिश कर दिए गए हैं, जबकि हलाक होने वाले डाकू की लाश कश्ती के जरिए रेस्क्यू की जा रही है। अंधड़ गैंग, लोराई गैंग और सिखानी गैंग के खिलाफ ये ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जबकि पुलिस ने कहा है कि सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे में मुनज़्ज़म मुख्तलिफ गैंग्स के खात्मे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से भारत में मुसलमान खातून का हिजाब उतारने के वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम भारत में मुसलमान खातून के हिजाब उतारने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी रैली में सिविल सोसाइटी, वकला और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज की क़यादत पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद इशफाक ने की। मुजाहिरीन ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुतबे उठा रखे थे और वाक़े को मुसलमानों की तौहीन करार दिया। और मुसलमान इसके खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर सरापा एहतजाज है। मुस्लिम दुनिया के अलावा वो तंजीमें जो समझती है इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी इसकी मजम्मत कर रही हैं। हिजाब मुसलमान खवातीन की इज्जत, वकार और मजहबी शनाख्त की अलामत है, जिस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इस शर्मनाक इकदाम पर जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाए। हम इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज करते हैं और भारतीय जो एक जमहूरी लबादा ओढ़ा हुआ है उसने और इंसानी हकूक का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी और नफरत अमेज रवैये मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिस पर आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों को फौरी किरदार अदा करना चाहिए। रैली के शुरका ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वाक़े को आलमी अदालत और आलमी फोरम्स पर भरपूर अंदाज में उठाया जाए। कैमरा टीम के साथ हाशिम अली भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे मियां चुन्नू से। मियां चुन्नू के नवाही इलाके में मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जी राना आजम, आगाह कीजिएगा। क्या पैगाम देंगे अपने क्रिसमस के हवाले से? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो 1 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि क्रिसमस की तकरीबात को बाकायदा तौर पर आप कवरेज दे रहे हैं सर्दी की शिद्दत में। मैं मेट्रो 1 को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आपने देखा कि आज यहाँ पर क्रिसमस केक सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी का बाकायदा जो है वो एहतमाम किया गया है और इस केक कटिंग सेरेमनी में आपने देखा कि बिला किसी मजहबी तफरीक के हर तबके के, हर मज़हब के लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है और ये मैं ये समझता हूँ कि जिस ग्रुप की जानिब से किया गया है की ग्रुप है, तो ये हर साल ही जो है इस तरह की तकरीबात का मुनक्कद किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिसमस की जो सेलिब्रेशंस हैं वो बड़े जोश व जज्बे के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये खानेवाल जो है छोटा इलाका है, लेकिन यहाँ पर मसीही कम्युनिटी की बहुत बड़ी आबादी है, तो यहाँ पर भी उसी तरह जोशो खरोश और बड़े जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर हर तबके के, हर मज़हब के लोगों को मदऊ किया गया था और बुनियादी मकसद ये था कि हम सिर्फ मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं, मजहबी रवादारी की बात करते हैं। और जैसा कि क्रिसमस जो है ये बुनियादी तौर पर हम कहते हैं कि ये सुलह सलामती, मोहब्बत और माफ़ी का एक दर्स है, एक पैगाम है, तो हम उसको जो है वो अमली तौर पर साबित करना चाहते हैं, अमली तौर पर उसको अमली
जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी मकसद जो है ये क्रिसमस की तकरीबात में सबको शामिल करना, चाहे उस शुरका का ताल्लुक किसी फ़िरके से हो, किसी मज़हब से हो, किसी मसलक से हो। तो हम कोशिश करते हैं कि मज़हबी रवादारी का पैगाम जो है नहायत मुस्बत तरीके से जो पूरी दुनिया में जाए। मैं मेट्रो वन के नाज़रीन जो देख रहे हैं, मैं जितनी भी मसीही बरादरी देख रही है, मैं अपनी तरफ से, अपने अहले खाना की तरफ से और ख़ास तौर पर अपने अहले गाँव की जानिब से, अपने गाँव की तरफ से उन तमाम को जो है वो क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर एक चीज़ मजीद आपको बताएंगे, डीपीओ ऑफिस भावन नगर में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ कामरान असगर ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा और मुबारकबाद दी। डीपीओ कामरान असगर ने क्रिसमस की तकरीब में मुलाजमीन को तहाइफ और नकदी तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने मसीही मुलाजमीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए और फौरी हल के अहकाम जारी किए। जबकि डीपीओ कामरान असगर ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, गैर मुल्की अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का ताल्लुक कसूर के कोट राधा किशन से है, जिस पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोट राधा किशन के इलाके के लिए खुशी का मौका जब पाकिस्तानी अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। तारीखी फतह में टीम की क़यादत करने वाले कप्तान फरहान यूसुफ के वालिद फारूक, अहले खाना और इलाका के मकीनों ने जश्न मनाया। घरों और गलियों में मिठाइयाँ तकसीम की और नौजवानों ने कौमी परचम लहराकर खुशी का इजहार किया। अहले इलाका का कहना है कि फरहान यूसुफ ने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि कोट राधा किशन का नाम भी रोशन किया है और ये कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। जबकि फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने मुनज़्ज़म बॉलिंग और जिम्मेदाराना बैटिंग के जरिए भारत को शिकस्त दी, जिस पर मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट जश्न मना रहे हैं। खबर शामिल करेंगे, महकमा सेहत व आबादी के ज़ेर एहतमाम पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत ज़िला काउंसिल हॉल में आबादी और तरक्की के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं भकर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत व आबादी की तरफ से पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत आबादी और तरक्की के उन्वान पर जिला काउंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी CEO सेहत व आबादी सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास खान थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान औलक, प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC डॉक्टर जाहिदा कयूम, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान, NGO समाजी बहबूद, उलमा, खतीब, सिविल सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। CEO महकमा सेहत व आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने सेमिनार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैमिली प्लानिंग के हवाले से रवैयों में तब्दीली की तरगीब के लिए उलमा, सहाफती तंजीमों, वर्कशॉप, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके और ग्रास रूट लेवल पर असर और सूख रखने वाले अफराद को मोबिलाइज करके तेजी से बढ़ती हुई बेहंगम आबादी को रोका जा सकता है और मुल्क को माशी और माशरती तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। हबीबुर रहमान, मलिक रमजान अवान और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से खवातीन और बच्चियों के हकूक, सिनफी मसावत और इंसानी हकूक की अहमियत के बारे में अवामुन नास में शऊर उजागर करना नागुज़ीर है। तेज रफ्तारी के साथ मुल्क की बढ़ती हुई आबादी बेशुमार मसाइल का पेश खेमा साबित हो रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सूबा पंजाब के महदूद वसाइल के मुकाबले में आबादी के बढ़ने की शरह 2.53% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। खित्ते में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ने की शरह पाकिस्तान में है। आबादी के बढ़ते हुए इस रुझान की बदौलत माशरे में गुर्बत, लाकानूनियत, बेरोजगारी, फिजाई आलूदगी, पानी की किल्लत, ट्रांसपोर्ट की कमी, सेहत की जदीद सहूलियात की कमी, जच्चा और बच्चा की अमवात जैसे सैकड़ों संगीन मसाइल को जन्म दे रही है। महकमा सेहत व आबादी पंजाब का पेश करदा मुतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान के नजरिया का मकसद यह है कि चादर देख कर पाँव फैलाए जाए और अपने वसाइल को मद्देनजर रखकर बच्चे पैदा किए जाए ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत अच्छी रहे और एक खुशहाल खानदान परवान चढ़ सके। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़ बक्कर। और यहाँ खबर शामिल करेंगे, हुकूमत ने किसानों के लिए जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़रख़ेसी मुतारिफ करवा दिया है, जिसके ज़रिए किसान डिजिटल तौर पर कर्जा जात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। ज़रख़ेसी ऐप के ज़रिए 10 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल किया जा सकता है और ज़रूरी तस्दीक के बाद दरख्वास्त किसान के मुंतखब बैंक को भेज दी जाएगी। मजीद आपको बताएंगे, ज़रख़ेसी ऐप का मकसद ज़राई फाइनेंस को डिजिटल बनाना है ताकि छोटे और बड़े किसान कर्जा जात के लिए आसान रसाई हासिल कर सकें।
कर्जे का 75% हिस्सा ज़राई सामान की खरीदारी के लिए बैंक के मंजूर शुदा वेंडर्स के जरिए फराहम किया जाएगा। इलावा अज़ीं लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किसानों को ज़राई मुशावरत की सहूलत भी दी जाएगी। इसके अलावा जिससे पैदावार में बेहतरी मुतवक्के है और हुकूमत ने छोटे किसानों के लिए फर्स्ट लॉस कवरेज और सब्सिडी भी फराहम की है ताकि कर्जा जात तक रसाई मजीद आसान हो। वफाकी वजीर बराए खजाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ज़रखेज़ी ऐप माली शमूलियत को फ़रोग़ देगी और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मकासद की हिमायत करेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि ऐप डिजिटल कर्जा जात के ज़रिए छोटे किसानों की फसलों की पैदावार में मदद देगी। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन जफर मसूद ने कहा कि बैंकिंग इंडस्ट्री ज़रखेज़ी ऐप के कामयाब नफाज के लिए पुरअज़म है और छोटे किसानों खुसूसन बेज़मीन किसानों के लिए माली रसाई बढ़ाई जाएगी। ज़रखेज़ी ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर दस्तयाब है और किसान अपने करीबी बैंक की ब्रांच से ऑन बोर्डिंग में मदद हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।